یا میری بیٹی کھیل رہی ہے وہ وہاں کھیلے. میرے گھر میں تو 100 کا ماحول بنا ہوتا نا, وہ بدماشی کرنے کے لیے میرے گھر پہ آئے ہیں. اور وہ آپ عاصم بٹ کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شاد باغ میں موٹے گینگ کے نام سے اس نے گروپ بنایا ہوا اپنا, اور یہ ایک فراڈیا قسم کا انسان ہے, کرمنل آدمی ہے یہ عاصم بٹ. عاصم بٹ باہر آیا, عاصم بٹ کے ہاتھ میں آپ پسٹل بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ وہی پسٹل ہے جو اس نے مجھ پہ اندر تانی. اس کے بعد پسٹل اس نے اپنی بیوی نبیلہ بٹ کو پکڑا دیا. اس آدمی میں لالچ اس قدر ہے میرے سسر میں کہ اس کو اس قدر لالچ ہے پراپرٹی کا, جائیداد کا, پیسے کا, کہ اس نے اپنی بیٹی کا بسا بسایا گھر اجاڑ دیا. وہ کلپ انہوں نے نہیں وائرل کیا جب میں نے ان سے بیٹی چھینی, انہوں نے وہ کلپ وائرل کر دیا جب میں نے پکڑ کے میں نے اس کو نیچے اتار دیا. السلام علیکم, کیو سی ٹی وی سے میں ہوں ریحان ہے. تو ناظرین, سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو اٹھاتا ہے اور زمین پر پٹکتا ہے. وہ بیٹی بھاگ کر اپنی ماں تک جا پہنچتی ہے. اس کے بعد ویڈیو کا ایک اگلا حصہ جو کہ سوشل میڈیا پر ہی ہم دیکھتے ہیں وائرل, کہ ایک شخص رائفل اٹھاتا ہے اور بولٹ مارتا ہے. بہرحال رائفل کا منہ تو زمین کی جانب ہی تھا, لیکن انہوں نے اسلحہ اٹھایا, اور کس وجہ سے اٹھایا وہ شخص میرے ساتھ موجود ہے. ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ وہ جو سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کا جو کیپشن تھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی پر تشدد کیا اور بیوی پر رائفل تان دی, اس معاملے میں کتنی صداقت ہے اور کہانی کے پس منظر کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ خرم شبیر. خرم بھائی, ویڈیو میرے سامنے آتی ہے سوشل میڈیا پر کہ آپ اپنی بچی کو اٹھا رہے ہیں اور بظاہر دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ زمین پر پٹک رہے ہیں. کیا معاملہ تھا؟ یار یہ جو ویڈیو چلائی گئی ہے یہ ایک فیک ویڈیو بنائی گئی ہے میری عزت خراب کرنے کے لیے, کاروباری ساخت خراب کرنے کے لیے, میرے گھر والوں کو بدنام کرنے کے لیے صرف ایک ویڈیو بنائی گئی ہے. اصل جو اس کی حقیقت ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں کہ جس دن یہ 7 سپتمبر کا واقعہ ہے, 7 سپتمبر کو جس دن یہ واقعہ ہوا میں اس ٹائم اپنے گھر پہ موجود بھی نہیں تھا. ایک عاصم بٹ نامی شخص جو میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے, وہ اپنی بیوی نبیلہ بٹ کے ساتھ میرے گھر پہ داخل ہوتا ہے. کیا لینے؟ وہ اسی لیے کہ ایک پری پلان, ایک پروپوگنڈا رچایا گیا کہ ہم جائیں گے, جا کے گھر سے زیور اٹھائیں گے, پیسے اٹھائیں گے, لے کر آئیں گے, میری بیوی کا وہ رشتہ دار ہے. تو وہ بس ایک ویڈیو جو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی, یہ بدنامی کے لیے ڈالی گئی کہ مجھے دبائیں گے, بدنام کریں گے, تو جو کہیں گے میں ان کی مانوں گا. ان کا مطالبہ مجھ سے یہ تھا کہ میں اپنے والد صاحب سے جائیداد میں حصہ مانگوں. میں ان کو انکار کرتا تھا کہ میں اپنے والد صاحب سے حصہ کیوں لوں جب میں اچھا بلا گھر پہ رہ رہا ہوں, ہر چیز تو میں سہولت دی ہوئی ہے, کھانے کی کمی نہیں, پینے کی کمی نہیں, ملازموں کی کمی نہیں. تو اس کے باوجود تم مجھے اگر یہ چیز کہو کہ اپنے والد صاحب سے حصہ لو, یا تمہارے والد صاحب کہیں کہ تم اپنے والد صاحب سے اس کو کوئی حصہ لے, میں کہیں غلط ہے. اچھا, اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ رائفل جو ہے اسے اٹھاتے ہیں, بولٹ مارتے ہیں, وہ کیا ماجرا تھا؟ وہ ماجرا یہ ہے کہ یہ عاصم بٹ اور اس کی بیوی نبیلہ بٹ, اگر کیمرہ مین دکھا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں گھر پہ موجود نہیں ہوں, میری غیر موجودگی میں یہ گھر آتے ہیں. میری CCTV کیمریز کی فوٹیج ہے, میری غیر موجودگی میں گھر آتے ہیں. گھر آ کے آپ دیکھیں گے کہ میرے باہر گراج میں گالیاں نکالتے, بعد میں میری بیوی ان کو ریسیو کرتی ہے. میری بیٹی کھیل رہی ہوتی ہے, اگر میں نے رائفل تانی ہو, اگر میں نے اپنی بیٹی پہ تشدد کیا ہو تو میری بیوی ان کو ریسیو کرے, یا میری بیٹی کھیل رہی ہے وہ وہاں کھیلے. میرے گھر میں تو 100 کا ماحول بنا ہوتا نا, میری کام والی بھی بیچ میں موجود آپ کو نظر آ رہی ہو. یہ جو ویڈیو آپ دکھا رہے ہیں یہ سارے انسیڈنٹ سے پہلے کی ہے؟ انسیڈنٹ سے پہلے کی ہیں. اس کے بعد ان کے آدھے پونے گھنٹے بعد میں گھر آتا ہوں, یہ میری ویڈیو ہے, یہ میرے آنے کی, میں بھی خوش گھر آیا کہ انہوں نے مجھے کال کی میرے گھر آ کے کہ ہم آپ کے گھر آئے, آپ بھی آ جاؤ. اس کے بعد جب میں اندر ایک تھرڈ پرسن آپ کے گھر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ کو کال کرتا ہے کہ آپ گھر آ جائیں, کیا وجہ تھی؟ یعنی کہ کوئی بات چیت کرنے آئے تھے, کوئی معاملہ سارٹ آؤٹ کرنے آئے تھے, کیا لینے آئے تھے؟ دیکھیں, اگر بات چیت کرنے کے لیے آئے ہوتے تو وہ پسٹل لے کے تو نہ آتے ہیں. اگر کسی نے بات چیت کرنی ہوتی ہے مجھے فون کر کے بات چیت کر سکتے تھے, مجھے اپنے گھر بلا سکتے تھے, مجھے باہر کسی جگہ بلا سکتے تھے اگر بات چیت کرنی ہو. وہ بدماشی کرنے کے لیے میرے گھر پہ آئے ہیں, اور وہ آپ عاصم بٹ کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شاد باغ میں موٹے گینگ کے نام سے اس نے گروپ بنایا ہوا اپنا, اور یہ ایک فراڈیا قسم کا انسان ہے, کرمنل آدمی ہے یہ عاصم بٹ. یہ اس کے اوپر کئی
पर्चे हैं फ्रॉड के, आप इसका रिकॉर्ड निकलवा के देख सकते हैं कि इस पर कई फ्रॉड के पर्चे हैं। और ये जो मेरी बेटी को बार बार लेके आते जी कि बेटी के ऊपर तशद्दुद किया गया, बेटी को पटका गया, उसकी असल हकीकत यह है कि बेटी मेरी जो है वो आसिम भट्ट उन्होंने दबोची हुई थी। मैंने इनसे बेटी अपनी जब छीनी तो मेरी बीवी इस जगह खड़े होकर वीडियो क्लिप बनाया, वो क्लिप उन्होंने नहीं वायरल किया। जब मैंने इनसे बेटी छीनी उन्होंने वो क्लिप वायरल कर दिया। जब मैंने पकड़ के मैंने उसको नीचे उतार दिया और वो भाग कर चली गई। जिस औरत के पास भाग के गई वो उसकी माँ है, और वही माँ उसकी वीडियो बना रही है, मेरी वीडियो बना रही है, वही माँ सोशल मीडिया पर लगा रही है। वो औरत जिसने मेरे साथ ज़िंदगी के 9 साल गुजारे हैं, मेरी शादी को 9 साल हो गए, 9 साल गुजारे, 9 सालों में मैं आज तक कभी कोई ऐसी वैसी हरकत अगर की तो मुझे बताएं ना कि मैंने उसको कुछ 9 सालों में मुझे नहीं इतना वायरल किया गया। 9 सालों में जब तक मैं उनकी मानता था क्या मानते थे उनकी? मेरी शादी 2015 में हुई, तो मेरी शादी के 2-3 माह बाद ही मेरी बीवी, मेरी सास और मेरे ससुर हाजी तनवीर ने मिलके तब भी मेरे वालिद साहब के खिलाफ एक प्रोपोगंडा स्टार्ट कर दिया। इन्होंने, मैं बच्चा था तब, छोटा, मेरी उम्र छोटी थी, इन्होंने माइंड वॉश करना स्टार्ट कर दिया कि अपने वालिद साहब से हिस्सा लो। मैं इवन यहाँ कि मैं अपने वालिद साहब से लड़ पड़ा कि मुझे हिस्सा दो। मेरी उम्र छोटी थी, मेरे वालिद साहब भी समझते थे कि ये नहीं संभाल सकता पैसों को। उन्होंने मुझे समझाया, मैं नहीं समझा। मैंने अपने वालिद साहब के ऊपर एक FIR दर्ज करवा, बीवी के कहने पे एक FIR दर्ज करवा दी। फिर मैंने अपने वालिद साहब से 55 लाख रुपया लिया कारोबार के लिए, जिस पे मेरे ससुर हाजी तनवीर के भी साइन है। और ये सारा मामला CCP लाहौर साहब के पास गया, उनके पास भी इसका रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ से भी चेक कर। अच्छा, आपने अपने वालिद पे FIR करवा दी, 55 लाख रुपया ले लिया और अपने वालिद से अलग रहने लग गया? अलग इनके तरफ चला गया। मेरे चचा के घर में थी शादी में, इनके साथ रहने लग गया। 4 साल जब मैं इनके साथ रहता रहा तो तब तक मैं ठीक, हर चीज़ ओके, जब मैं इनको खिलाता था पिलाता था। 4 साल बाद जब मुझे पता लगा, मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने वालिद साहब के पास दोबारा आ गया। वालिद साहब से आके रिक्वेस्ट की, माफ़ी मांगी, उन्होंने मुझे माफ़ किया। उसके बाद मैंने कुछ साल 2 साल अपने वालिद साहब के साथ गुजारे। उसके बाद फिर मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं भी आ गया हूँ, आप मेरी बीवी को भी ले आएँ। मेरे वालिद साहब ने कहा, पुत्र अगर आपने अपनी बीवी लेकर आनी तो फिर आप एक अलहदा घर में जाके रहोगे। मैंने एग्री किया, मैंने अलहदा घर लिया, मैं अपनी बीवी को लेकर आया। मैंने यहाँ पे मुलाजिम रख के दिए, हर चीज़ की सहूलत दी। मेरी बेटी जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये मेरा क्लिप है कि जब मैं घर में एंटर होता हूँ तो मेरी बेटी खेल रही होती है और मुझे हक कर रही होती है। मैं अंदर अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ पे आसिम भट्ट वगैरह पहले से मौजूद होते हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, मेरी बीवी वहाँ से बाहर निकल आती है, बाहर आके कैमरा, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स, ये देखिए आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये स्क्रीन पर मौजूद है वीडियो शुरू हो जाती है। उसके बाद जो राइफ़ल वाली बात की गई, जब ये मुझे थ्रेड कर रहे थे अंदर बैठ के, मुझे गालियाँ निकाल रहे थे, जब पिस्टल निकाला इन्होंने तो मुझे लगा, और कॉल पे किसी को आसिम भट्ट कह रहा था कि तुम भी आ जाओ, तुम भी। मुझे जब महसूस हुआ, मैं यहाँ से उठा, मैं अपने कमरे में आया, मैंने अपने बाहर गार्ड को कहा कि एक्टिव हो जाओ, काम वाली होगा एक्टिव हो जाओ। मैं अपने कमरे में आया, मैंने कमरे में आकर, क्या आप खौफजदा हो गए? मैं खौफजदा हो गया। ये आपको दिखा, किस बात का डर था? आपकी बीवी है और उनके रिश्तेदार, मुझे जान से जाने का डर था कि आज ये मेरी वीडियो एक वायरल की। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं राइफ़ल लेकर आया, मैंने उसका मैगजीन लगा के मैंने बाहर अपने गन मैन को राइफ़ल दे दी कि आप भाई बाहर खड़े हो जाओ, देखो कि कोई आए ना, कुछ भी हो सकता था उस टाइम जो सूरत हाल बन चुकी हुई थी। उसके बाद की बात यह है कि उसके बाद ये दूसरा क्लिप ये है कि मैं फिर अंदर था, मैंने जब इन्होंने मेरे पे पिस्टल ताना, मेरा गनमैन आपको बाहर खड़ा नज़र आ रहा होगा कि बाहर गेट पे, मैंने उसको आवाज़ लगाई, वो भाग के अंदर आया। मेरी बीवी ने उससे राइफ़ल छीनने की कोशिश की, मेरी बीवी उससे राइफ़ल छीन रही, इस वीडियो में नज़र आएगा। जब मेरी बीवी ने राइफ़ल छीनी, मैं बाहर आया, उनसे जान छुड़वा के किसी ना किसी तरह बाहर आके मैंने राइफ़ल उससे पकड़ी अपने गनमैन से कि इसको ना देना। उसके बाद आसिम भट्ट बाहर आया, आसिम भट्ट के हाथ में आप पिस्टल भी देख सकते हैं, ये वही पिस्टल है जो उसने मुझ पर अंदर तानी। उसके बाद पिस्टल उसने अपनी बीवी नबीला भट्ट को पकड़ा दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। ये वो क्लिप है जिसमें मुझे मार रहे हैं, आसिम भट्ट भी मार रहा, मेरी बीवी भी उसके साथ मिली है, सब मेरे थ्रेड मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये एक और क्लिप है कि इसमें आप देख सकते हैं कि मेरी बीवी मुझे कॉर्नर में इन्होंने लगाया हुआ है, मुझे मार रहे। उसके बाद मेरी बीवी रिलैक्स माहौल में बाहर जाएगी, आसिम भट्ट की बीवी उसे कहती मेरी बीवी को वीडियो बनानी स्टार्ट कर दो। मेरी बीवी ने आगे से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। मैंने अगर बोल्ट मारा, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए मारा। अगर आप देख सकते हो उस क्लिप में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि राइफ़ल मैंने किसी की तरफ की नहीं है, राइफ़ल का मुंह नीचे ज़मीन पे है। राइफ़ल तानना मीन होता है कि राइफ़ल उठा के किसी पे तान देना, उसका प्रोटेक्शन कर रहे थे। मैं अपनी प्रोटेक्शन कर रहा था कि मुझे किसी तरह मार ना दे, जान से ना मार दे। मेरी बीवी वीडियो बनाती रही। उसके बाद
ये दूसरी वीडियो है कि अच्छा, ये तो वीडियोस आप दिखा रहे हैं। दिखा रहा हूँ कि मेरी बेटी मेरी बीवी की गोद में, ना वो रोड़ी है, ना अगर तशद्दुद किया वो रोड़ी होती, कम से कम उसका कोई मारा था। मेरी बेटी हाशरी है, मेरी अपनी माँ की गोद में है, और मेरी बीवी स्टिल वहाँ खड़ी वीडियो बना रही है। मेरा गनमैन राइफल लेके भी बाहर चला गया हुआ है, तब तक ये वीडियो। उसके बाद इन्होंने ये सारा एक प्रोपोगंडा जो रचाया। उसके बाद इन्होंने 15 पे कॉल दी। पुलिस का चौकी इंचार्ज आदिल साहब वो घर पे आए, उन्होंने आके मामला सुना। उनको मैंने बताया कि सारा मेरा सामान और ये मेरी बेटी को लेके जाना चाह रहे हैं। आदिल साहब ने, बहुत अच्छे इंसान है वो, उन्होंने बैठ के मेरा मामला सुना। उन्होंने आगे से मुझे कहा कि बेटा आप ऐसा करें कि इनको जाने दें, आपके घर का मामला है, 1-2 दिन में आपका सेटलमेंट हो जाएगी। तो उनके कहने पे मैंने अपनी बेटी भी दे दी, अपना सामान भी इनको मैंने जाने दिया। दूसरी दिन जो है मेरे घर पे शाम को रेटें स्टार्ट हो गई पुलिस की। पुलिस मेरे घर रेटें मारने लग गई। मैंने पूछा पुलिस वालों से भी, मुझे कॉल आई पुलिस के, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि जो है रेड पड़ी क्यों। तो उसके बाद मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद मुझे थाने ले जाते हैं, चौकी में। उधर जाकर मुझे पता लगता है कि मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें मैंने राइफ़ल को बोल्ट मारा। उस बिना पे पुलिस ने मुझे उठाया। जब पुलिस मुझे उठाती है राइफ़ल के, उसके बाद मुझ पर एक FIR लॉन्च हो जाती है। वो मैं आपको FIR की कॉपी भी दिखा सकता हूँ कि मुझ पर एक FIR होती है। ये वो FIR की कॉपी है। उसके बाद जब मुझे अगले दिन पेश किया जाता है तो मैं जज साहब के पास जाके मैं अपना मौक़िफ़ बताता हूँ, उनको सब सच्चाई बताता हूँ। मैं अपना लाइसेंस शो कराता हूँ राइफ़ल का, जो कि मेरी राइफ़ल जिसका मैं लाइसेंस मेरे पास मौजूद था, मैं उनको जब दिखाता हूँ तो वो पर्चे को डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैं वापस आता हूँ। मुझे अब सिर्फ एक चीज़ का इंसाफ चाहिए। मैं इनके ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी हुई है, अभी तक मेरी दाद रसी नहीं हो रही उस एप्लीकेशन के ऊपर। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे खुरम भाई कि 9 साल आपकी शादी को हो गए, माशाल्लाह 7 साल की बेटी है आपकी, तो क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जो आपकी मिसेज़ हैं वो आपके ख़िलाफ़ ही हो गई? देखिए, अगर अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग भी थी, मेरी बीवी के साथ। लेकिन जब माँ बाप, आपको पता है, पीछे बैठे एक बंदे का माइंड वॉश करें और एक बेटी का घर ना बसाना चाहते हो। अब ये जितना किरदार अदा किया गया, इसमें 2 बंदों का किरदार है मेन। एक आसिम भट्ट मेरे घर मेरी गैर मौजूदगी में आता है, और दूसरा मेरा ससुर हाजी तनवीर का किरदार है कि जो अपनी बेटी का बसा बसाया घर ख़राब करना चाहता है, उजाड़ना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि चंद पैसों के लिए, जायदाद के लिए एक बसा बसाया घर तुम लोगों ने ख़राब कर दिया। मेरी बेटी का फ्यूचर ख़राब करना चाहते हैं ये लोग कि मेरी बेटी, उनका अपना तो कोई फ्यूचर है नहीं, मेरी बेटी का भी फ्यूचर ख़राब करना चाहते हैं। अभी आपकी बेटी किधर है? मेरी बेटी अपनी माँ के पास है। तो अभी आपसे दूर है, आप बता रहे थे उसकी आज बर्थडे है। मेरी बेटी की आज बर्थडे है। ये 7 सालों में पहली बर्थडे है जो मेरे बगैर वो कर रही है। तो कैसा कोई देखें, अजियत हो रही होगी, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी। बाप हूँ आखिर मैं उसका, मेरे साथ वो 7 साल रही है, मेरी जान उसमें बसती है, मेरी एक अकलौती बेटी है। तो तकलीफ़ तो फिर खैर बाप को होती है, लेकिन मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र भी है, अपनी बेटी पे फ़ख्र है कि वो उन ज़ालिमों के पास रह के भी अगर वो खुश है। मुझे इस चीज़ पता है कि अभी मेरी बेटी को मेरे सामने लेके आए, आप ले आए मेरी बेटी को मेरे सामने, अगर वो भाग के मेरे पास ना आए तो फिर आप क्या ना, अगर मैं तशद्दुद करता हूँ, उसे मारता हूँ, तो मेरे पास ज़िंदगी में कभी स्कूल जाती बेटी? स्कूल जाती। जिस दिन का ये मामला हुआ उन्होंने स्कूल भेजना बंद कर दिया उसको। मुझे स्कूल से कॉल आई हैं कि आपकी बेटी स्कूल नहीं आ रही। मैं अब उनको क्या बताऊं, उन्होंने तो इतना नहीं सोचा कि वो स्कूल गोइंग बच्ची है, उसके स्कूल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाप की इज़्ज़त को आप उछाल रहे हो, उसकी माँ खुद उछाल रही है, उसका फ्यूचर, कल उसकी शादी करनी है, उसका फ्यूचर पे क्या चीज़ इम्पैक्ट आएगा कि हमने कल रिश्ते देखने हर चीज़। लेकिन नहीं, चंद पैसों के लिए, जायदाद के लिए इन सब ने ये सब कुछ किया। उन्होंने बच्ची का नहीं सोचा। अगर ये बच्ची का सोचते, अगर ये इतने अच्छे होते तो ये बच्ची का सोचते, उसका वालिद अगर इतना अच्छा होता, बच्ची का सोचता कि नहीं, अपनी बेटी ने, अगर उसकी बेटी ने वायरल की तो अपनी बेटी को उसका बाप समझाता कि नहीं बेटा, अपनी बेटी के ऊपर देखो, अपनी बेटी को देखो, कल को इसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। लेकिन उस आदमी में लालच इस कदर है, मेरे ससुर में, कि उसको इस कदर लालच है प्रॉपर्टी का, जायदाद का, पैसे का, कि उसने अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दिया, मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि अगर तुम अपनी बेटी ले भी गए हो, ठीक है, मेरी बेटी कम से कम मुझे वापस करो, ताकि मैं उसका फ्यूचर देखूँ, अगर मैं उसे पढ़ाऊँ, उसे कुछ बनाऊँ। तुम लोगों के घर पर रहेगी वो तो तबाह। ये मुझे पता ना कि ये उसको किसी छोटे से स्कूल में एडमिट करा देंगे, उसके बाद उसका जो फ्यूचर बनेगा वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा, कि जैसे वो उसके नानके हैं वो उससे अपने तरह का उसको बना लेंगे। बेटियाँ सबकी सांझी होती है, अल्लाह पाक उसके बहुत अच्छे नसीब करे और फ्यूचर उसका सेव रहे। क्या चाहते हैं आप? इंटरव्यू देने का मकसद या सोशल मीडिया पर आने का मकसद क्या है अब आपका? मैं बस ये चाहता हूँ कि IG पंजाब साहब से, CCP लाहौर साहब से
वज़ीर आला पंजाब साहब से, SSP साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा नोटिस लिया जाए, आसिम बट को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए, ताकि इन जैसे शरपसंद अनासर जो ये फैलाते हैं लोग माशरे में, लोगों के घरों में बगैर इजाज़त के घुसते हैं, लोगों के घर तबाह करते हैं, इन लोगों को गिरफ़्तार करके मीडिया पे लाया जाए, इनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई जाए, ताकि दूसरे लोगों को तक ये एक बात जाए कि लोगों के घर किस तरह तबाह करते हैं, किस तरह नहीं करते। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आसिम बट पे फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और इस पर पर्चा दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। मामला कुछ यूँ था कि शादी के बाद जिस तरह से ये अपने वालिद से दूर हो गए थे, तो इनके वालिद ने उस वक्त जो लम्हात, जो एहसासात महसूस किए होंगे, जो फीलिंग्स उस वक्त उनकी थी, वही इस वक्त इनकी भी हैं, क्योंकि औलाद, ये भी अपने वालिदैन की औलाद थे और दूर हो गए, बीवी के साथ चले गए, और अब इनकी अपनी औलाद जब दूर है तो इन्हें एहसास हो रहा है कि वालिदैन और औलाद के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, और जब दोनों में से कोई एक करैक्टर भी बिछड़ता है तो क्या अज़ियत होती है। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आपको ये सारे मामले में इनकी बातें जो आपने सुनी, इस बारे में आप क्या राय रखते हैं ये भी बताइएगा। आपने सोशल मीडिया पर एक रुख तो देखा था, दूसरा रुख हमने कोशिश की कि आप तक पहुँचाया जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।